Good morning, students. Today we will discuss the remaining questions of exercise 1.5. So let's start. The question number 4 is, if U equals to this one, this is U means universal set, and A is this, B is this set. So then verify, this is first question, this is second question. These two questions we have to verify. So these are De Morgan's law. For any sets, De Morgan's law. There are two De Morgan's law. First is A union B dash equals to A dash intersection B dash. Second one, A intersection B dash equals to A dash union B dash. These are two De Morgan's law, and these are true for any two sets. Okay, so for this question we will prove these two identities, or you can say that these two parts of De Morgan's law. So let's start. The first one is A union B dash. So answer 4 में first part जो है, we have to calculate A union B dash. So first we need to calculate A union B. So A union B means add, this is LHS. So A union B means add all the elements. Add means take all the elements of set A and set B, but repetition is not allowed. So सबसे पहले हम यहाँ A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे लिख लेंगे A. So A के एलिमेंट 2, 4, 6, 8. ओके, देन यूनियन B. सो यूनियन मीन्स ऐड होना है एलिमेंट्स उसी सेट में. सो यहाँ पे B में जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो B में सबसे पहले 2. सो 2 हम यहाँ लिख चुके हैं, सो रिपीटेशन नहीं होगा. देन 3. सो 3 यहाँ नहीं लिखा, देन वी राइट 3. देन 5. सो 5 भी नहीं आया, सो यहाँ लिखेंगे. देन 7. सो 7 भी लिखेंगे. नाउ अरेंज दीज एलिमेंट्स इन ऑर्डर, और यू कैन से सीक्वेंस. सो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8. So 5, 6, 7, 8. Okay, this is A union B. Now calculate A union B dash. So A union B dash means universal set minus A union B. Okay, so minus means write all the elements of U which are not in A union B. यानी कि U के हमें यहां वो ही एलिमेंट लिखने हैं जो A यूनियन B में नहीं है. अगर A यूनियन B में एलिमेंट है तो उनको छोड़ देंगे और बाकी को हम लिख लेंगे. सो सबसे पहले मैं U में देखता हूं 1. सो क्या यहाँ 1 है क्या? A यूनियन B में देखिए 1 है क्या? नहीं है तो लिख लेंगे. देन 2, क्या यहाँ पे 2 है, सो लेफ्ट कर देंगे. देन 3 भी यहाँ है, लेफ्ट कर देंगे. देन 4 भी है. 5, 6, 7, 8. सो यहां तक लेफ्ट कर देंगे. देन वी राइट 9. सो A union B dash is 1 and 9. This is our LHS. Okay. Now find out the value of right hand side. So in right hand side first calculate A dash. So A dash means U minus A, means U के वो एलिमेंट लिखने जो A में नहीं है. A में है तो उनको छोड़ देंगे. सो देखिए U में 1 to 9 तक है, A में 2, 4, 6, 8 है. सो यहाँ से 2, 4, 6, 8 को तो लेफ्ट कर देंगे यहाँ इसके लिए, और बाकी लिखेंगे. सो यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद 2 को लेफ्ट कर देंगे. देन लिखेंगे 3, देन 4 है, लेफ्ट कर देंगे. 5 लिखेंगे. 6 U में भी है और A में भी है, सो लेफ्ट कर देंगे. देन 7 लिखेंगे. देन 8 दोनों में है, लेफ्ट कर देंगे. देन 9. सो दिस इज A dash. नाउ राइट B dash. B dash इज U minus B. सो अब U में से वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो कहाँ है, B में है, और बाकी लिख लेंगे. सो यहाँ देखिए U में 1 है, B में नहीं है, सो यहाँ हम लिखेंगे 1. देन U में 2 है, यहाँ B में भी 2 है, लेफ्ट कर देंगे. देन 3 को भी लेफ्ट कर देंगे. 4 नहीं है, सो यहाँ हम लिखेंगे 4. देन 5 है, लेफ्ट कर देंगे. 6 नहीं है, सो लिखेंगे. देन 7 लेफ्ट कर देंगे. 8 और 9 को लिखेंगे. ओके, सो दिस इज U minus B. Now we have to calculate A dash intersection B dash. So now A dash intersection B dash.
means A dash or B dash में intersection means common. So now write all those elements which are common in A dash and B dash. So this is A dash and this is B dash. इन दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे. देखिए 1 दोनों में है तो लिखेंगे. देन 3 नहीं है छोड़ देंगे. 5 नहीं है लेफ्ट कर देंगे. 7 नहीं है लेफ्ट कर देंगे. 9 है दोनों में तो लिखेंगे 9. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स. ओके, सो दिस इज A dash intersection B dash. This is RHS. Now LHS is 19, RHS is 19. So this is the proof of first part. So hence A union B dash equals to A dash intersection B dash. This is the proof of first part. Similarly, you have to prove the second part. Okay, second part को तुम्हें खुद से करना. Now come to question number 5. So question number 5 is देखिए जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है वहां यहाँ इंटरसेक्शन है. सो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे, उसका डैश कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो आंसर नंबर 5. फर्स्ट राइट द फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी डैश. ओके, इसका हमें वेन डायग्राम प्लॉट करना है, यहां पे ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ए यूनियन बी. ओके, सो ए यूनियन बी सबसे पहले. तो देखिए ए यूनियन बी के लिए दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. सो ए यूनियन बी मीन्स यूनियन मीन्स ऐड करना. सो ऐड दी फील्ड ऑफ ए एंड बी. सो ए और बी का फील्ड ऐड कर देंगे. सो this region is A union B. Okay, now A union B dash. अब हमें कैलकुलेट करना है A union B dash. So A union B dash means U में से माइनस करेंगे क्या A union B. ओके, मीन्स जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. दिस इज A एंड दिस इज B. ओके, सो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है कंप्लीट, उसमें से माइनस का मतलब होता है लेफ्ट करना. सो लेफ्ट कर देंगे ए यूनियन बी. सो ए यूनियन बी देखिए ये वाला रीजन है, मीन्स ये जो है ये शेप हमारा ए यूनियन बी है. सो इस कंप्लीट रीजन में से हम ये जो ए यूनियन बी वाला जो पोर्शन है, दिस वन ए यूनियन बी का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हम लेफ्ट कर देंगे. सो हमारे पास ये रीजन रहेगा. ओके, सो दिस रीजन इन विच वी प्लॉट द लाइंस, दिस प्लॉटेड रीजन इन विच वी प्लॉट द लाइंस, दिस इज ए यूनियन बी डैश. Okay, so this diagram is the presentation of this one, A union B dash. Okay, now come to second one. So let's plot the second one diagram. Okay, second one is A dash intersection B dash. So first plot A dash. So A dash को अगर मैं प्लॉट करूं, then this is U, this is A, this is B. So A dash means you can say that A dash means U minus A. Okay, so इसको हम प्लॉट करेंगे, मीन्स जो हमारा U है उसमें से A को लेफ्ट कर देंगे. सो A को लेफ्ट करने के बाद देखिए सिर्फ A को लेफ्ट करना है, B को लेफ्ट नहीं करना है, सिर्फ A को, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट A डैश. सो ये वाला जो रीजन है, जो A है, ठीक है, ओके, जो A है
उस रीजन को छोड़ने के बाद जो भी हमारा रीजन रहेगा दैट इज ए डैश. ओके, नाउ प्लॉट बी डैश. सो नाउ बी डैश मीन्स u माइनस बी. सो यू कैन से दैट ये हमारा ओके this is universal set, this is A and this is B. So now we have to plot B dash. B dash means जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से B का रीजन छोड़ देंगे, बाकी सारा जो है शेडेड होगा. B को हमने लेफ्ट कर दिया, बाकी को हमने क्या किया, शेडेड कर दिया. देखिए ये वाला जो B है इसको तो हमने लेफ्ट कर दिया और बाकी को हमने क्या किया, शेडेड कर दिया. ओके, नाउ A डैश इंटरसेक्शन B डैश मीन्स ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. दिस इज A, दिस इज B. सो A dash intersection B dash means this is A dash and this is B dash. इस रीजन में से और इस रीजन में से इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, यानी इन दोनों रीजन्स में से दिस इज B dash. सो इन दोनों रीजन्स में से हमें वो कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है जो इसमें भी शेडेड है और इसमें भी शेडेड है. ठीक है, सो देखिए हम बात करें, ये वाला जो रीजन है दिस वन, ये यहां शेडेड है लेकिन इसमें ब्लैंक है. ये वाला रीजन यहां ब्लैंक है लेकिन इसमें क्या, शेडेड है. बट ये वाले जो सर्किल्स हैं, इन सर्किल्स के बाहर का रीजन है, इन दोनों सर्किल्स के बाहर का रीजन देखिए यहां भी ओके, बाहर का रीजन है वो क्या है, हमारा शेडेड है दोनों में. सो कॉमन रीजन यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए ये रीजन है, दिस रीजन इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश. ओके, अगर मैं एक ही डायग्राम में प्लॉट, सो आप चाहे तो अलग अलग पहले A डैश प्लॉट करके फिर B डैश प्लॉट करके फिर इन दोनों का कॉमन रीजन है वो प्लॉट कर सकते हैं. ओके, या एक दूसरा मेथड कि मैं एक ही डायग्राम में कॉमन रीजन है उसको प्लॉट करूं. सो देखो क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इसी पार्ट को अगर एक ही फिगर में प्लॉट करूं तो देखिए दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट A एंड B. सो सबसे पहले तो हम A डैश प्लॉट करेंगे. सो A डैश मीन्स A को लेफ्ट कर देंगे, ओके. ये हमारा क्या हुआ, A डैश. अब हम प्लॉट करेंगे B डैश. सो B डैश के लिए मैं जो ट्रांसवर्सल लाइंस है उनको दूसरी डायरेक्शन में यूज में लूंगा. सो नाउ वी हैव टू प्लॉट B डैश. सो B डैश के लिए मैं जो है B को लेफ्ट कर दूंगा, B को लेफ्ट किया और ट्रांसवर्सल लाइन जो है उनकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी. मुझे प्लॉट करना B डैश. सो B डैश के लिए ये लाइन भी होंगी, सिर्फ B को लेफ्ट कर देंगे. ओके, ये हमारा डायग्राम. ओके, नाउ टेक दैट रीजन विच कंसिस्ट बोथ ट्रांसवर्सल लाइन
मीन्स जो इस तरीके से टेढ़ी ये वाली लाइन है वो भी हो, प्लस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और उस रीजन में ऐसी लाइन भी हो। यानी जिस रीजन में क्रॉस टाइप की जो हमारा जो हम करेंगे फिगर बन रहा है क्रॉस टाइप का, वो रीजन जो है दैट विल शो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो देखिए यहां पे मैं बात करूं सिर्फ सिंगल लाइन है, ठीक है, ओके। यहां बात करूं सो यहां देखिए ये वाला जो रीजन है, मैं राउंड कर रहा हूं, सो ये वाला जो रीजन है इसमें ये वाली लाइन है सिर्फ, ये वाला जो रीजन है इसमें ये वाली लाइंस है, ठीक है। वो जो बीच वाला रीजन है उसमें कोई लाइन नहीं है, लेकिन जो बाहर का रीजन है ये वाला, मीन्स इनके बाहर जो रीजन है उस रीजन में क्रॉस्ड सेक्शन बन रहे हैं। मीन्स मैं बात करूं तो ये वाला जो रीजन है देखिए, ओके, दिस रीजन रिप्रेजेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, okay, so this is second part. Now come to third one. So third one is third part is A intersection B dash. So first of all plot A intersection B. So A intersection B means this is our universal set and this is A and B, this is U. So A और B का common region, intersection means common region. So this is the region that is common in A and B. So this is A dash intersection B dash. ये वाला जो region है, and you can select this region. Okay. So this region is A intersection B. Now we have to plot A intersection B dash. Means जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमारा ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट कर देंगे, ओके। तो जो हमारा रीजन बनेगा दैट रीजन विल बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए एंड बी। नाउ इस यूनिवर्सल सेट में से लेफ्ट दैट रीजन दैट इज इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी में ये रीजन है, ये वाला रीजन हम लेफ्ट कर देंगे। उसके अलावा जो हमारा रीजन रहेगा मीन्स हम बात करेंगे सिर्फ ये रीजन जो है इस रीजन को छोड़ के, ओके, सिर्फ ये वाला जो बीच में ये वाला रीजन है सिर्फ इस रीजन को लेफ्ट करके बाकी जो रीजन होगा दिस रीजन, ओके। ये जो हमारा रीजन है वो होगा हमारा ए, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। Now come to the fourth part, that is A dash. Fourth part is A dash union B dash. Okay. So the fourth part is A dash union B dash. Okay. So first of all draw A dash. So A dash means U minus A. So you can write this is universal set. This is A, this is B, this is universal set. U minus A, जो हमारा U का रीजन है उसमें से A को लेफ्ट कर देंगे, so A को लेफ्ट किया, ओके। दिस इज A dash, so U minus A, okay. Now plot B dash. तो देखिए B dash means U minus B, ओके। सो B dash means U minus B। सो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम B को लेफ्ट कर देंगे, ओके, और बाकी को हम सेटेड बनाएंगे। और अब मैं जो
दूसरी टाइप की ट्रांसवर्सल लाइन है वो यूज कर रहा हूं। सो बी को मैंने लेफ्ट कर दिया, ओके, ये हमारा रीजन हुआ। नाउ ए डैश यूनियन बी डैश। सो ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन मीन्स ऐड करना। सो उस रीजन को ऐड करो जिसमें चाहे सिंगल लाइन है चाहे डबल लाइन है। सो देखो मैं बात करूं, यहां पे हमारी लाइंस है, यहां पे हमारी लाइंस है, सिर्फ और सिर्फ दिस इज द रीजन विच डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लाइन, और यू कैन से दैट विच नॉट कंसिस्ट एनी टाइप ऑफ लाइन। सो इस रीजन को छोड़ के ये वाला जो है, बाकी जो भी हमारा रीजन है, चाहे उसमें ऐसी लाइन हो चाहे ऐसी लाइन। देखिए इंटरसेक्शन, जब हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना हो तो उसमें ये वाली लाइन भी होनी चाहिए फर्स्ट ऑपरेशन की, और सेकंड वाले की, मीन जिसमें इस तरीके से स्क्वायर टाइप की शेप बन रही है, वो रीजन होता है इंटरसेक्शन। ओके, बट यूनियन में चाहे ऐसी लाइन हो चाहे ऐसी लाइन हो चाहे इनका कॉम्बिनेशन, ओके, वो रीजन हम कंसीडर करते हैं। तो सिर्फ इस रीजन को छोड़ के बाकी जो रीजन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ऑल दीज रीजन consider in A dash union B dash. So this is the A dash union B dash. Okay, this is question number 5. The next question is question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. यानी एक प्लेन है, उसमें यूनिवर्सल सेट है, वो सारे ट्राइंगल्स का सेट है। So सभी all triangles का सेट मीन्स एक सेट होगा जिसमें हर टाइप का ट्राइंगल होगा, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, स्केलन ट्राइंगल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, ऑब्ट्यूस भी होगा, ठीक है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होगा। सो इस तरीके से सारे के सारे ट्राइंगल्स उस प्लेन में हो। सो दैट इज यू। ओके, नाउ आंसर नंबर 6। नाउ सो यू मीन्स यू कैन से दैट एक ऐसा प्लेन जिसमें कि सारे के सारे ट्राइंगल होंगे, मीन्स यू कैन से दैट इक्विलेटरल, ठीक है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा, इसमें स्केलन ट्राइंगल भी होगा, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, ओके, इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होगा, और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी होगा। ओके, तो सारे के सारे ट्राइंगल इस सेट में होंगे। नाउ इफ ए इज द सेट, सो दिस इज ए, सो ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी कि कोई ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल 60 से अलग हो, मतलब एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग, ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री से मतलब कि उसमें हो सकता है दोनों एंगल अलग हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये 60 हो गया और सपोज ये 60 होगा तो फिर ये 60 हो ही नहीं सकता, तो ये 70 हो गया और ये 50 हो गया। तो देखो एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट, ओके, मींस यहां पे वो एंगल, वो ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें तीनों एंगल 60 हो, ठीक है। ए में जो है वो ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो, वो नहीं होगा ए में, ठीक है। सो ए मीन्स सेट ऑफ ट्रायंगल्स different set of triangles with at least one angle, at least one angle different from 60। ओके, देखिए एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो,
एक भी हो सकता है, दोनों एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और तीनों एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। मींस इसमें सिर्फ वो ट्रायंगल नहीं होंगे जिनमें कि तीनों एंगल्स 60 डिग्री हैं। ओके, इसमें ये वाला जो ए है, जो हमारा सेट है, उसमें वो ट्रायंगल नहीं होंगे जिनके कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं। मींस यू कैन से दैट ए डज नॉट कंटेन दोज ट्रायंगल्स in which all three angles are 60 degree, or you can say that equilateral triangle जो है वो इसमें नहीं होंगे। और जो ट्राइंगल इस ए में नहीं होगा वो किसमें होगा? ए डैश में होगा। किसमें होगा? ए डैश में होगा। सो ए डैश मीन्स यू माइनस ए। सो यू कैन से दैट all the triangles except सो ए में वो होगा, एक मिनट, ए में वो ट्राइंगल होंगे जिनमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है। और इस u माइनस ए में क्या हो जाएगा हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि जो एंगल जो ट्राइंगल हमारा ए में नहीं होगा वो ए डैश में होगा। ठीक है, और ए में कौन सा नहीं होगा? वो ट्राइंगल नहीं होगा जिसमें कि तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, वो ए में नहीं होगा। और ए में नहीं है तो कहां होगा? ए डैश में होगा। सो ए डैश में क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ऑल थ्री एंगल्स विद 60 डिग्री। और a triangle with all angles 60 degree. Okay, so this is our question number 6. Now come to question number 7. अब मैं इसको फिनिश करके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज मुझे यहां कुछ लिखना है। फिल इन दी ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ दी फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। यानी इसके आगे डैश डैश, यहां डैश डैश और यहां डैश डैश और यहां डैश डैश। मीन्स मुझे इन डैश को है ना फिल कर, ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। आंसर नंबर 7 फर्स्ट, जैसे ए यूनियन ए डैश। ओके, सो मैं बात करूं, देखिए ये हमारा यू है, ये हमारा ए है। ठीक है, सो दिस इज ए। ओके, दिस इज ए। और ये जो है ये हमारा ए डैश होगा। ओके, दिस इज ए डैश। नाउ ए यूनियन ए डैश, यानी यूनियन का मीन्स किसी भी टाइप की लाइन हो वो इंक्लूड होगी, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली। सो देखिए ये पूरा का पूरा रीजन है, उसमें कहीं भी कोई स्पेस ऐसा ब्लैंक नहीं है जिसपे लाइन नहीं हो। मीन्स कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो वो क्या होता है? दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। नाउ सेकंड इज फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ओके, इसको मुझे फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले फाई डैश। सो फाई डैश मीन्स, देखिए वी नो फाई डैश मीन्स u माइनस फाइव। सो u माइनस फाइव मीन्स u। सो फाई डैश मीन्स यूनियन, आप इसको लिख सकते हो यूनियन इंटरसेक्शन ए। और मुझे पता है यूनियन और ए का इंटरसेक्शन दैट इज ए। यह आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं। नाउ कम टू थर्ड वन। थर्ड इज ए इंटरसेक्शन ए डैश। कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन तो होता है यूनिवर्सल सेट, और सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन वो होता है हमारा फाई। क्या होता है? फाई। सो दिस इज थर्ड। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, u डैश इंटरसेक्शन a डैश। तो देखिए u डैश इंटरसेक्शन a, एंड वी नो u डैश मीन्स 5। देखिए u डैश मीन्स 5 बिकॉज u माइनस u, so we get 5, and 5 dash means u minus 5, so we get u. Okay, so यहां पे u dash means 5 intersection a. So अब देखो
फाइव और ए का इंटरसेक्शन हमें पता है क्या होता है, 5. ओके, 5 और ए का इंटरसेक्शन दैट इज 5. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 7 जो है उसके पार्ट थे. सो एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट. थैंक यू.